Hey students, how are you? We are meeting for the first time after Diwali, so I wish you all Happy New Year. I hope all of you are happy, healthy, and safe at your home. All of you might be preparing very well for your exam also and for building up the bright future. Please do maximum use of this time and you will have a very good future. I am sure of it. Friends, now you will get two videos every week. One video will be revision video. We will also start your grammar portion. And for that, let me begin our reason from your Flamingo book, Unit 1. So please take out your Flamingo book, Unit number 1, and the name of the unit, you know that it is the last lesson. तो आज मैं क्या करूंगी, ये पूरा जो लेसन है वो मैं आपको ब्रीफ में उसकी स्टोरी सुनाऊंगी, साथ में जो ग्रामर का टॉपिक है वो भी इसमें से हम करेंगे। पता नहीं जब स्कूल खुलेगी आप स्कूल में आएंगे, हमें टाइम मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो। सो प्लीज लर्न अटेंटिवली and please note down all the topics or all the words and all the phrases and some transformation of the sentences and all these grammar topics. Please note them down. Okay, this is the first paragraph of your unit 1. In this paragraph, the main characters Franz and Mr. M. Hamill, they are introduced, and you know that Franz was very late and he was in a great dread of इसका मतलब होता है, ये आपको याद रखना है, dread of यानी डरना। तो उसको किस चीज का डर था कि एम हैमिल उसके जो टीचर थे वो उसे डांटेंगे, स्कोल्डिंग करेंगे। व्हाई? बिकॉज एम हैमिल ने उसे बोला था कि ही वाज गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स एंड our hero our hero M. Hamill didn't know anything about participles, and so he was afraid of going to school. नाउ ये सेंटेंस हम करेंगे, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। आपको एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा, व्हाट डिड फ्रांस थिंक इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल he thought of spending a day out of doors. Why did Franz think so? उसने ऐसा क्यों सोचा? Because it was so warm and so bright. Outside the home, it was so warm and so bright. So, ये आपको याद रखना है। MCQ में 4 ऑप्शंस आपको आएंगे, तो इसमें से ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करके यही लिखना है, क्योंकि all the options will be same. Okay? So how was the day? ये इसका description है, the birds were chirping and behind the sawmill the Prussian soldiers were drilling. Continuous past tense. It was all much more tempting than the rule for participles. ये कई बार मैंने ये सेंटेंस आपको हमने रिपीट किया है, क्लास में भी और वीडियो लेक्चर में भी ये रिपीट किया गया है। ये सेंटेंस देखिए, It was all much more tempting than the rule for participles. ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसका ये कंपेरेटिव का हम क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। द रूल फॉर पार्टिसिपल्स वर नॉट सो टेम्पटिंग एज द डे और एज इट वॉज। याद रहेगा, so tempting as. The rules were not so tempting as it was. But I had the strength to resist. ये सेंटेंस भी हम करेंगे, I had the strength to resist and hurried to the school. ये सिंपल इसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। ये कंपाउंड सेंटेंस है, I had the strength to resist and hurried off to the school. तो याद ये कौन सा है सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस है और दोनों सेंटेंसेस को एंड से कनेक्ट किया गया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम उसका सिंपल करेंगे। ऑन हैविंग द
स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, तो मैंने एक वर्ब निकाल दिया। कौन सा वर्ब निकाल दिया? हेड निकाल दिया। हेड का मैंने पार्टिसिपल कर दिया ऑन हैविंग द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, कोमा आई हरीड ऑफ टू स्कूल। तो ये हमने क्या कर दिया? कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कर दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When से स्टार्ट किया गया, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो इसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो while passing the town hall, while follows ing form, while के बाद क्या लगाना पड़ेगा हमें? ing form। तो past का हम ing form क्या करेंगे? passing। while passing the town hall, what did he see? ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर के लिए याद रखना है। तो जब वो टाउन हॉल के पास से पसार हुआ तो उसने क्या देखा? तो बुलेटिन बोर्ड था और बुलेटिन बोर्ड के पास कि थोड़े आदमी खड़े थे। तो व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुलेटिन बोर्ड? ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है। तो फॉर द लास्ट 2 years ऑल बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। So it was not a good place because only bad news had come from that bulletin board. Which type of news had come from on the bulletin board? तो ये आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। The lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, all these types of bad news always are displayed on the bulletin board. आगे बढ़ते हैं। विदाउट स्टॉपिंग उसने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, तो अब क्या मैटर हो सकता है? तो इसका पंक्चुएशंस भी आप देख लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। तो फ्रांस को तो रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स नहीं आते थे और वो जल्दी से एक फियर के साथ स्कूल में जा रहा था, बिकॉज ही हैड द फियर ऑफ दैट हिज टीचर मिस्टर एम हेमिल वुड स्कोल्ड हिम। द डे वाज वेरी गुड बट ही रेजिस्टेड the temptation of going out and he just went to the school and he went। ये फर्स्ट वाला सेंटेंस हमें ग्रामेटिकली करना है। as hurried by as fast as I could, तो I hurried by as fast as I could go। तो वो बोल रहे थे कि वहां पे एक ब्लैक स्मिथ खड़ा था, उसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। इसका नाम था वॉचर एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर विथ वोम, विथ हिज अप्रेंटिस। ये इंफॉर्मेशन आपके एमसीक्यू के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसने उसको बोला डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो आइए इसका इनडायरेक्ट हम करते हैं। तो वॉचर ने क्या बोला, ब्लैक स्मिथ ने क्या बोला? तो ब्लैक स्मिथ advised or told or suggested Franz don't go, उसका हम क्या करेंगे? not to go so fast, and added that he would get to his school in plenty of time, full stop। इतने चेंजेस आपको सेंटेंस में करना पड़ेगा। तो फिर से मैं करती हूं। तो वॉचर एडवाइज्ड Franz not to go so fast and added that he would get to school in plenty of time। पहले तो उसने सोचा कि he was making fun of me, but जब वो लिटिल गार्डन, एम हेमिल का लिटिल गार्डन था, उसके पास पहुंचा तो उसने देखा कि द स्कूल स्टार्ट हो गई थी, द स्कूल हैड स्टार्टेड। बट यूजुअली, तो यहां पे हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनरली व्हेन द स्कूल बिगिंस व्हाट हैपेंस, क्या जनरली होता है? तो यूजुअली जब स्कूल स्टार्ट होती है तो देयर वाज ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट। तो कौन सा क्या डिफरेंस था? जनरली इन नॉर्मल डेज When the school began, तो स्कूल में इतनी हसल पसल होती थी और इसकी आवाज could be heard out in the street। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो ग्रेट बसल could be heard out in the street, full stop। उसका हम एक्टिव करते हैं। तो people could hear,
कैसे मैं समझाऊं? अगर मेरे पास चौक और बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती, लेकिन ये सेंटेंस है ग्रेट bustle कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। ये सेंटेंस है हमारा। कौन सुन सकता है? लोग सुन सकते हैं। तो बाय पीपल उसका हम सब्जेक्ट कर देंगे पीपल कुड हियर। एक्टिव वॉइस में बी नहीं आएगा, तो कुड फॉलोज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब V1। तो पीपल कुड हियर ग्रेट bustle आउट इन द स्ट्रीट। Which type of noise could be heard in the street? कौन सी आवाज स्ट्रीट में आ रही थी? तो जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क्स, lessons repeated in unison very loud, and our hands over, sorry, how did they repeat the lesson? तो दे उसको वे लोग अपने हैंड्स को अपने ईयर पे रखते थे। क्यों? ये आपको याद हो तो यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो क्यों है ये कान पर हाथ रखते थे? तो सो दैट दे कुड अंडरस्टैंड द लेसन बेटर। ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। तो दे कुड अंडरस्टैंड द लेसन बेटर, इसके लिए वो अपने कान पे हाथ रखते थे। एंड लास्ट आवाज जो डेंजरस आवाज थी वो कौन सी आवाज थी? द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। बट ऑन दैट डे इट वॉज वेरी मच स्टिल and I had counted on the commotion। ये count on उसका ये फ्रेज का सिनोनिम मीनिंग आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको ये फ्रेजेस के सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। MCQ में ABCDE ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। तो काउंट ऑन इट मीन्स डिपेंड ऑन। तो किसके ऊपर उसने आधार रखा था कि क्लास में तो बड़ी कॉमोशन होगी, बट एंड इन दिस हसल पसल इन दिस कॉमोशन आई वुड गो टू माई प्लेस एंड नो वन वुड नोटिस इट। बट ऑन दैट डे एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। बट उस दिन द एटमोस्फियर ऑफ द क्लास वॉज सो क्वाइट। तो इसका कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? संडे मॉर्निंग। कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री। तो संडे मॉर्निंग that day everything had to be as quiet as Sunday morning। तो Sunday morning did not have to be more quiet than that day। ये याद रखना है। Sunday morning did not have to be, had not to be लिखोगे तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज had है ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो उसका हम क्या करेंगे? डिड नॉट हैव। Sunday morning did not have to be more quiet as that day। Through the window उसने अपने classmates को देखा। All of them were on their places and Mr. M. Hamill was walking here and there into the classroom, but where was his ruler? His iron ruler was under his arm। ये आपको याद रखना है। and I had to, and that's why उसने क्या सोचा था? There would be commotion into the class। Instead of commotion, there was a silence into the class and everyone was right there on their places, and that's why he had to open the door। Everyone looked at him and he had to enter with the permission। You can imagine how I blushed and how frightened I was। आप ये imagine कर सकते हैं कि मैं कितना डर गया था और मैं कितना ब्लश्ड हो गया था। ये सब सीन सब लोग मेरे सामने देख रहे थे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हेमिल ने मुझे देखा और क्वाइंडली मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। इसका हम इनडायरेक्ट करते हैं। तो एम हेमिल काइंडली सजेस्टेड to go to my place quickly। M. Hamill addressed little Franz and suggested kindly to go to his place quickly। We were beginning without you। तो हम लोग तो आपके बिना स्टार्ट कर रहे थे। तो this is the difference between the normal days and on that particular day। So मैं अपनी बेंच पे चला गया and I had got over। सो गेट ओवर उसका सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है। गेट ओवर इट मीन्स कंट्रोल कर लिया। मैंने अपने फ्राइट, अपने फियर पर कंट्रोल कर लिया। एंड और दूसरी चीज उसने क्या नोटिस की? देखो हमारा क्वेश्चन अभी चल रहा है। पहली थिंग उसने क्या नोटिस की?
Instead of loud noises coming out of the school, there was a silence in the school. Everyone were there on their places, and M. Hamill was moving here and there. No one was speaking anything, and there was nothing like opening and closing of the desk or nothing like that. Another thing he had noticed that M. Hamill, sorry, that his teacher M. Hamill had on his beautiful green coat, और उसकी ड्रेसिंग, उसकी कॉस्ट्यूम भी डिफरेंट थी, ब्लैक सिल्क कैप पहनी थी. बट व्हेन डिड ही यूज टू वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग? तो ही यूज टू वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेसिंग ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज. तो ये जो कॉस्ट्यूम थी जो वो इंस्पेक्शन के दिन और प्राइस के दिन पहनते थे, वही कॉस्ट्यूम आज उसने पहना था. वो दूसरी बात उसने नोटिस की. तीसरी बात है, वो स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, और स्कूल स्ट्रेंज लग रही थी. एंड लास्ट थिंग दैट सरप्राइज्ड अवर फ्रांस वाज when he looked at the back benches, the back benches were almost empty. He saw that the people were sitting quietly like students. And who were sitting on the back benches? Old Hauser with his three-corner hat, the former mayor, the former postmaster, and several other besides. ये सब लोग गांव के बड़े बुजुर्ग लोग, they were sitting on the back benches, and they had an old primer with them, and they were sitting like students. So this another thing he noticed, which was very much strange and very much different from the usual days. While I was wondering, while के बाद ing form आएगा और आएगा. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair, and in the same grave and gentle tone उसने बोला, my children, this is the last lesson I shall give you. तो उसने अनाउंस किया कि आज वो लास्ट लेसन है. क्यों लास्ट लेसन है ये आपको देखो इसमें है. Order has come from Berlin. Has come. It is perfect present tense. कहाँ से order आया है? Berlin से. What order has come? To teach only German in the school of Alsace and Lorraine. Alsace and Lorraine, they were two districts of France, and they said that the message had come that now onwards no French will be taught into the school of these two districts. What were the names of the districts? Alsace and Lorraine. So the new teacher will come tomorrow and he will start to teach German to you. So this is your last French lesson. So please learn all these things very attentively. और इस ये बात सुन के सब लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ. इट वॉज वेरी मच शॉकिंग फॉर ऑल दिस. फ्रांस पे उसका क्या असर हुआ, ये एग्जाम में आपके लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट है. उस दिन फ्रांस जब डे स्टार्ट हुआ तब फ्रांस को स्कूल जाने की इच्छा नहीं हुई थी, क्योंकि उसको पार्टिसिपल्स आता ही नहीं था, उसने कुछ किया ही नहीं था. बट जब उसने सुना कि दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन, तब उसको बहुत ही दुख हुआ. उसने सोचा, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, I should never learn anymore. I must stop there then. And how sorry I was not learning my lesson for seeking birds' eggs and going sliding on the Sar. Sar is the name of the river. तो उसको बहुत ही दुख हुआ कि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं. Instead of studying the language, उसने क्या किया? He went to seek the birds' eggs. ये आपको याद रखना है. मैं एक पीडीएफ भी आपको भेजने वाली हूँ, इसमें ये सब आपको लिखना है. ओके, तो मैंने सार रिवर में स्लाइडिंग की, बर्ड्स के एग्स ढूंढने में चला गया था, लेकिन 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 मैंने तो कुछ स्टडी नहीं किया था. सो ही वाज सो अनहैप्पी. एंड he remembered his books which he didn't like.
बुक्स उसको नहीं अच्छी लगती थी, बट व्हेन ही न्यू दैट इट वाज द लास्ट लेसन, he remembered his old books, his old friends, the history of France and all these things, and he was so sorry that it was the last French lesson. uh, I couldn't give up, and M. Hamill too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. When M. Hamill thought that we are not going to meet again, and when he realized that he's not going to see this man again, he forgot all bad things about Mr. M. Hamill. Which two bad things did he forget? He forgot his ruler, which he used to beat the students. उसने उसे भूल दिया, और उसने ये भी फॉरगेट कर दिया कि हाउ क्रैंकी ही वॉज. फिर ही जस्ट उसकी गुड क्वालिटीज वो याद रखने लगे. एंड अब उसको पता चला कि मिस्टर एम हेलमिल ने संडे क्लोथ्स क्यों पहने हैं. उसको ये भी पता चल गया कि अब ये मेरे विलेज के लोग बैक बेंचेस पे क्यों बैठे हैं. और एवरीथिंग वाज सो साइलेंट. तो जब while I was thinking of all this, I heard my name called. ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, उसका हम सिंपल करें तो while thinking of all this, comma, I heard my name called. मेरा नाम मैंने सुना. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मेरे पार्टिसिपल्स के रूल लाउड और क्लियर बोलने के लिए और विदाउट एनी मिस्टेक बोलने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था, बट उस दिन मेरा सब मिक्सड अप हो गया और मैं कुछ नहीं बोल सका. तो उसने सोचा मेरा टीचर मुझे डांटेंगे, लेकिन एम हेमिल ने बोला आई वॉन्ट स्कोल्ड यू. ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है. एम हेमिल, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू. You will not be scolded by me, little France. You must feel bad enough. आपको भी बुरा लग रहा होगा. तो एवरी डे मैंने आपको बोला था I have plenty time, I will learn it tomorrow. तो आपको ये लग रहा था कि मैं बाद में लर्न कर लूंगा, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं. और देखो ये हमें बिछड़ने का टाइम आ गया. How is it you pretend to be Frenchman and yet you can neither speak nor write your own language? आप फ्रेंच मैन हो तो आपकी लैंग्वेज बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते. But you are not the worst, poor little France. The worst, it is superlative degree, and we have all great deal to reproach ourselves. अब ये पेरेंट्स के बारे में बोल रहे हैं मिस्टर एम हेमिल. ये थोड़ा सा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. योर पेरेंट्स वेर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न. आपके पेरेंट्स ने भी आपकी स्टडी के लिए दे वर नॉट एंक्शियस. Instead of sending you to the school, they preferred to you to work on the farm or at the mills. थोड़े से पैसे के लिए आपके पेरेंट्स ने भी आपको स्कूल भेजने के बदले कहाँ पे भेजा था, ये याद रखना है अच्छे से. They preferred to put France to work on a farm or at the mills. Instead of sending France to the school, they sent them to earn money. तो एम हेमिल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बोलने लगे और उसने बोला फ्रेंच लैंग्वेज वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल. ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस आ गया. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल. जस्ट 1 सेकंड. हाँ, language in the world. So, what did M. Hamill say about French language? So, M. Hamill said that it was the most beautiful language in the world. It was the clearest language and it was the most logical language. And anyhow, it is our duty to guard us. ये आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट मदर टंग? तो when people are enslaved, as long as they hold fast to their languages, it is as if they had the key to their prison.
एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो अगर हम अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट करेंगे, तो जब हम एंस्लेव्ड हो जाएंगे तो ये हमारी प्रिजन की हो जाएगी। लेकिन फ्रांस एक्सेप्ट करता है कि मैंने इतना केयरफुली एम हेमिल का लेक्चर कभी नहीं सुना था। ये आपको आफ्टर ग्रामर किसका लेसन था? उसको राइटिंग का था। तो न्यू कॉपी सबको दी गई और उसने बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली उसने फ्रांस अल्साज ये ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में उसने लिखा, और सब लोगों को ऐसा लगा कि जैसे फ्लैग्स फ्लोटिंग कर रहे हैं। तो ये उसने whenever I looked up from my writing, so I saw M. Hamill sitting motionless in the chair, gazing first at one thing and then at another thing. तो M. Hamill सब चीज अच्छे से देख रहे थे, as if he wanted to fix in mind just how everything looked in that little school room में वो सब कुछ कैसा लग रहा है, ये सब अपनी आंखों से जैसे सब उसको मेमोराइज कर रहे थे, ऐसा उसको लग रहा था। और उस दिन अब एम हेमिल के गार्डन के बारे में आपको एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो वॉलनट ट्रीज स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए थे? तो थोड़ी सी डेस्क और बेंचेस वर्न आउट हो गई थी। वॉलनट ट्री उसके गार्डन में जो उसने प्लांट किया था वो थोड़ा टॉल हो गया था। हॉपवाइन जो उसने अपने हाथों से प्लांट किया था वो भी विंडो से रूफ तक आ गया था। एंड हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन। और उसकी सिस्टर है ऊपर लगेज पैक कर रही थी, ये भी उसको सुनाई दे रहा था। तो ये सब छोड़ के जाना इस आदमी के लिए कितना डिफिकल्ट होगा, ये वो समझ सकते थे। लेकिन फिर बेबीज वो चैंटिंग करने लगे, बा बेबी, जो उसकी बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी, एंड so all of them were very serious. And then last paragraph, all at once the church clock struck 12, then 12 o'clock हो गए। and at that time ट्रम्पेट्स की आवाज आई, प्रशियन सोल्जर्स वे रिटर्न हुए अपने रेगुलर ड्रिल के साथ। लास्ट वर्ड्स ऑफ एम हेमिल, वो कुछ बोलने गए लेकिन वो कुछ बोल नहीं सके। वो ब्लैक बोर्ड पर उसने सिर्फ इतना लिखा, वी वे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। एमसीक्यू में बहुत बार इसको पूछा जाता है, आपकी लास्ट एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वी वे ला फ्रांस? इट मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस। एंड इसी तरह से स्कूल डिसमिस हो गई और सब लोग अलग हो गए। दिस वॉज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एंड वेरी इमोशनल लेसन इट इज, बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन मैं आपको एक पीडीएफ भेज रही हूँ। इस पीडीएफ को आपको संभाल के रखनी है। आप चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकाल लो और उसमें की सभी एक्सरसाइज आपको करनी है, सभी एक्सरसाइज। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन फर्स्ट यूनिट का पीडीएफ मैं भेजूंगी आपको, आइदर उसको नोट में अपनी फुल स्केप बुक में लिखना है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, और फिर आपको हो सके तो मुझे आप दिखाने के लिए भी आ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।